بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ اس سے قبل میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ ڈپوزٹ کی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اس کے اندر دو مسئلے آتے ہیں کہ ہیوی ڈپوزٹ لے کر کے کم کرایہ دینا یہ کیسا ہے، رہنا جائز ہے یا نہیں، یا ڈپوزٹ زیادہ دے کر کے اور پھر کرایہ بالکل نہیں دینا، مفت رہائش۔ تو یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ بمبئی میں اس ہیوی ڈپوزٹ کو ڈپوزٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو ڈپوزٹ کہا جاتا ہے۔ بعض علاقے میں اسی رقم کو ایڈوانس رقم بھی کہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے کرناٹک سے بنگلور، شہر بنگلور سے فون کیا اور انہوں نے اسی کے ہم مثل مسئلہ معلوم کیا۔ چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس علاقے میں ڈپوزٹ کی رقم کو کیا کہتے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لیز پر مکان وغیرہ لینا کیسا ہے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو، اس کا علم مجھے نہیں، لیز ہوتا کیا ہے، آپ اپنے علاقے کو علماء سے معلوم کر لیجئے تو اس کا شرعی حکم آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ بعد میں نے جب دیکھا اس کی تحقیق کو، تو جس طریقے سے بمبئی میں ڈپوزٹ کی رقم ہوتی ہے اسی کا سمجھیے دوسرا نام لیز ہوتا ہے، لام یا زا۔ ایک صاحب نے اسی لیز کو لیس کہا، لام یا سین، لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ لیس نہیں، لیز ہے۔ بہرحال اس میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو بمبئی وغیرہ میں ایڈوانس رقم دی جاتی ہے۔ بمبئی میں کیا ہوتا ہے میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتلاؤں، اس کے بعد آگے اس کا حکم، اور بنگلور وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل دیکھے، پھر اس کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ بمبئی میں ہوتا یہ ہے کہ 10 لاکھ روپیہ یا 20 لاکھ یا جس کی جیسی کیپیسٹی ہے آپس میں جس طریقے سے متعین ہو جائے، 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ مکان کا ایڈوانس ڈپوزٹ دے دیا جاتا ہے۔ ڈپوزٹ اس کو بمبئی کے اندر کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ایڈوانس بھی کہتے ہیں۔ اسی ایڈوانس کو بنگلور وغیرہ کے اندر لیز کہا جاتا ہے، ایڈوانس رقم۔ تو 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جتنا جس کی حیثیت ہے اتنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ ایڈوانس رقم جو دے دیا، ڈپوزٹ جو دے دی، اس ڈپوزٹ کے دے دینے کے بعد پھر کرایہ کم کر دیا جاتا ہے۔ مثلا مکان کا اصل کرایہ 15,000 روپیہ ہونا چاہیے، لیکن جب ڈپوزٹ دے دی گئی زیادہ، سیکورٹی ڈپوزٹ جس کو کہتے ہیں، یہ زیادہ دے دی گئی، تو اس زیادہ دینے کی وجہ سے مثلا 15 لاکھ روپیہ دیا یا 20 لاکھ روپیہ دیا، تو اب مکان کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ کرایہ 15,000 کے بجائے 5,000 6,000 4,000 اس طریقے سے جیسا آپس متعین ہو جائے اس طریقے سے لوگ کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ عموماً بمبئی شہروں کے اندر ایسا ہی زیادہ تر چلتا ہے۔ اب اسی کو شہر بنگلور کے جو لوگ ہیں، عموماً میں کلی حکم تو نہیں لگا سکتا کیونکہ میں نہ کبھی گیا ہوں بنگلور اور نہ میں اس کی اصل حقیقت کو جانتا ہوں۔ صاحب نے فون کر کے جب مسئلہ معلوم کیا تب مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ اس کو لیز کہتے ہیں، لام یا زا۔ ایک صاحب نے اسی کو لیس بھی کہا، لام یا سین، لیکن اب یہ اصل لفظ کیا ہے یہ تو جب ان صاحب نے فون کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ لیز ہوتا ہے، تب یہ اس کی حقیقت کا مجھ کے علم ہوا۔ بہرحال تو دارالعلوم دیوبند کے ایک فتوے میں لکھا ہے، کسی سائل نے پوچھا کہ مجھے گھر کو لیز لینے کی جائز ناجائز تمام شکلیں مطلوب ہے، اگر کوئی شکل جائز نہ ہو تو لیز پر گھر لے کر یہ حیلہ کرنا کہ مہینے میں کچھ رقم ادا کر دی جائے، مروجہ نہ ہو جبکہ گھر کا مالک بھی اس پر راضی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر یہ فتویٰ موجود ہے، آپ وہاں دیکھیں گے
इस तरीके से ये मसला जो मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया कि मुझे घर को लीज लेने और नाजायज़ तमाम शक्ल बिदलील मतलूब है, ये मसला टाइप करके देखेंगे तो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर ये मसला आपको मिल जाएगा। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद का फतवा नंबर है 126 -313N+4 फिर 1439, ये जो है उसका फतवा नंबर पूरा नकल किया गया 1439 हिजरी का। लिखते दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम के लीज पर मकान लेने की जितनी शक्लें आपके इल्म में है और आप उनका हुक्म शरई जानना चाहते हैं, अगर आप वो सब शक्लें तहरीर फरमाकर सवाल करते तो बेहतर होता। वैसे झेल में मुरव्वजा किराए से मुतालिक चंद अहम शक्लें माहुक्म शरई तहरीर की जाती है, और अगर आप मज़ीद शक्लों का हुक्म जानना चाहते हो तो बराहे करम उन्हें तफसील के साथ लिख कर भेज दे। इंशाअल्लाह हर शक्ल का जो हुक्म होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, हर शक्ल का हुक्म शरई तहरीर कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसा फतवा जैसा सवाल होता है हुक्म उसके मुताबिक नाफिज होता है। आप पता चला कि एक पेपर पर तो सवाल कुछ लिख रहे हो, जवाब कुछ मिले आपको, ये ऐसा नहीं होगा। ये उसूल है फ़िक़ह का कि जैसा सवाल होगा, जैसा आपका सरे वरक़ पर सवाल लिखा जाएगा, मुफ्तियान किराम उसके वरक़ उसी वरक़ पर जो है नीचे या बैक साइड में पीछे साइड में उसका जवाब उसी तरीके से जो होगा उसी को दिया जाएगा। चुनांचे लिखते हैं कि पहली शक्ल मकान मालिक किराएदार से डिपॉजिट, जिस तरीके से हमने अभी आपको बम्बई की शक्ल बतलाई, बम्बई की जो शक्ल होती है मैं आगे उसको भी बयान करूंगा कि इसकी क्या शक्लें होती है, उसका क्या हुक्म है, ये मैं आपको आगे भी इंशाल्लाह बतलाऊंगा। चुनांचे लिखते हैं कि डिपॉजिट या एडवांस के नाम से, असल में डिपॉजिट कह लीजिए या एडवांस कह लीजिए, ये दोनों सूरतें जो है वो एक ही होती है, नाम इसका अलग होता है। बम्बई में इसको डिपॉजिट की शक्ल दी जाती है और इसी को जो है केरला वगैरह के इलाके में लीज या एडवांस की शक्ल कहते हैं। बम्बई में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे अहबाब जो है इसको एडवांस ही की रकम शुमार करते हैं। बहरहाल एडवांस के नाम से एक मोटी रकम वसूल की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, आपस में दोनों का तय हो जाए उतना दिया जाता है। और दोनों के दरमियान ये तय हो जाता है कि जब तक किराएदार मकान में रहेगा मकान मालिक डिपॉजिट की रकम इस्तेमाल करेगा। ये बम्बई में उमूमन होता है। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दावत बरकातहुम ने और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा महमूदुल फतावा वगैरह में लिखा है, मैं आगे उसका हवाला दूंगा। लिहाजा दोनों जो है एक दूसरे के माल से नफ़ा उठाते हैं, मकान मालिक उसके पैसे से नफ़ा उठाता है और किराएदार उसके घर से नफ़ा उठाता है। और जब किराएदार मकान छोड़ना चाहेगा तो उसे इसकी मुकम्मल रकम वापस कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है ये सूरत होती है बम्बई में और इसी सूरत पर लोग अपने मकान वगैरह को लेते हैं। और मकान मालिक डिपॉजिट के अलावा किराएदार से किराए के नाम पर कुछ भी रकम वसूल नहीं करेगा। ये उमूमन बम्बई में भी पाया जाता है कि डिपॉजिट ज़्यादा दे दी कि तो अब कोई किराया नहीं होता है। तो इस सूरत का यानी किराया डिपॉजिट ज़्यादा दे करके और किराया बिल्कुल नहीं देना, तो इस सूरत में पहली शक्ल जो मैंने आपके सामने बतलाई, इसका शरई हुक्म यह है कि ये शक्ल अज़रुए शरा नाजायज़ और हराम है। अज़रुए शरा ये सूरत नाजायज़ और हराम है, क्योंकि किराएदार या एडवांस के नाम से जो एडवांस रकम या डिपॉजिट के नाम से जो रकम दी जाती है, जो रकम मकान मालिक को किराएदार देता है, उसकी हैसियत शरान देखी जाए अगर तो कर्ज की हैसियत मालूम होती है। ये फ़ुक़हा और मौजूदा दौर के जो मुफ्तियान किराम हैं उन्होंने भी लिखा है कि ये सूरत बहैसियत अगर देखी जाए तो कर्ज की होती है और मकान मालिक उसे कर्ज ही की बुनियाद पर मकान की मुफ्त रिहाइश देता है। उमूमन जो बड़े बड़े शहरों में भी होता है वो यही होता है कि मकान मालिक ने जब ज़्यादा पैसा लिया है एडवांस के नाम पर या डिपॉजिट के नाम पर, तो
کرایہ دار کو مفت رہائش دیتا ہے وہ اسی بنیاد پر دیتا ہے کہ ہم نے اس سے ایک موٹی رقم حاصل کی ہے، جبکہ شریعت میں قرض کا معاملہ جو ہے خالص عقد تبرع ہے، یہ کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک میں نفع حاصل نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے کسی بندے کے ساتھ۔ اس بنیاد پر مقروض سے کوئی بھی نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ سود کے حکم میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث صاف ہے، ہدایہ الی السنن اور شامی وغیرہ کے اندر ہے، اور السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ ایسا قرض جس کے اوپر آپ نے کسی طریقے کا نفع حاصل کیا یہ سود کے دائرے میں آتا ہے، لہذا آپ کے لیے اس کو قطعاً استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مفت رہائش اختیار کرنا مکان مالک کرایہ دار کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی مکان مالک کو اس طریقے سے فری رہائش دینا جائز ہوگا۔ یہ تو ایک صورت تھی جو آپ کے سامنے میں نے تفصیل بیان کی۔ اب دوسری صورت اس کی یہ ہے، دوسری شک کہ مکان مالک کرایہ دار سے ڈپازٹ، جیسا کہ بمبئی میں اس کو کہتے ہیں، یا ایڈوانس یا لیز زیادہ رقم دینا، جیسا کہ یہ الفاظ اصل میں دوسرے ہیں، معاملات وہی سب کچھ ہے جو ڈپازٹ کے نام پر ہوتا ہے، اگرچہ اس کا نام الگ الگ علاقوں میں دوسرا نام دے دیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ڈپازٹ بھی اسی کا نام ہے، ایڈوانس بھی اسی کا نام ہے، اور لیز بھی اسی کا نام ہے۔ یہ بنگلور کے لوگوں کی اصطلاح میں اس کو لیز کہتے ہیں، ایڈوانس بھی کہتے ہیں، اور بمبئی کی اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ ڈپازٹ کی رقم سے تعبیر کرتے ہیں، اور بھی مختلف علاقے میں اس کو یہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایڈوانس کے رقم سے ایک ایڈوانس کے نام سے ایک موٹی رقم مکان کا جو مالک ہے وہ کرایہ دار سے وصول کرتا ہے۔ پہلی صورت میں جتنی رقم وصول کی جاتی ہے اس سے کچھ کم، پہلی صورت میں جتنی صورت میں نے ابھی جو بتلائی ہے کچھ کم، اور کرایہ دار سے ماہانہ کچھ کرایہ بھی وصول کرے جس کی مقدار مکان کی اجرت مثل سے بہت کم ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتلاتا ہوں۔ مثلا مکان کا کرایہ اس کی کنڈیشن اور جائے وقوع وغیرہ کے لحاظ سے 10,000 روپیہ، لیکن ڈپازٹ کی وجہ سے صرف 5,000 یا 500 یا 1,000 5,000 یا 200 یا 400 جو بھی کچھ ہوتا ہے لے لیے جاتے ہیں۔ اور ڈپازٹ کے بارے میں اس صورت میں بھی یہ طے ہے کہ جب تک کرایہ دار مکان میں رہے گا مکان مالک ڈپازٹ کی رقم استعمال کرے گا، اور جب تک کرایہ دار مکان چھوڑ کر جائے گا تو اس کی مکمل رقم اس کو واپس کر دی جائے گی۔ تو اب میں اس کا حکم پہلے بتلا دیتا ہوں، پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اصل میں۔ دوسری اس صورت کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہ شکل بھی از روئے شرع ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی کرایہ دار کو قرض کی بنا پر مفت رہائش تو نہیں مل رہی ہے، لیکن کرائے کی کمی کا نفع اسے ضرور حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن کرائے کی کمی کا نفع حاصل جو اس کو ضرور حاصل ہو رہا ہے، قرض کی بنیاد ہی پر یہ مفت رہائش مل رہی ہے، یا اس صورت میں نہیں، مفت نہیں تو اس صورت میں کرایہ کم کر دیا جاتا ہے۔ تو کرائے کی مقدار میں کمی کی شکل، کسی بھی شکل میں کوئی نفع کا حاصل کرنا، یہ بھی از حکم شرع یہ سود کے دائرے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ شکل بھی ناجائز ہوتی ہے۔ اب یہ جو دوسری صورت میں نے آپ کو بتلائی وہ کیا ہوتی ہے بمبئی وغیرہ کے اندر، اور یہی اس صاحب نے جو فون کیا تھا کیرلا سے، بنگلور سے، تو ان صاحب نے بھی یہی صورتیں بتلائی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ رقم لے لی جاتی ہے ڈپازٹ کی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ، اور اس کے بعد جو اس مکان کا، مثلا ابھی سمجھیے کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ مکان کی اصل قیمت جو ہونی چاہیے کرائے کی وہ 10,000 روپیہ میگزیمم ہونا چاہیے ہر مہینے کا، 10,000 روپیہ، لیکن اس صورت میں ہم نے 10,000 روپیہ دینے کے بجائے اس کو کیا کہ ہم نے 15 لاکھ روپیہ اس کو ڈپازٹ ایڈوانس لیز کے نام پر دے دیا ہے۔
लीज के नाम पर हमने 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया दे दिया। अब मकान मालिक ये करता है कि ये 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया जो किराएदार से लिया है, इस भारी रकम के लेने की वजह से उसके किराए में तखफीफ कर देता है। मसलन इस मकान का किराया 10,000 होना चाहिए, तो अब इस मकान का किराया वो 5,000 लेगा या 2,000 या 300, 500, 1,000 रुपया या जो भी आपस में तय हो जाता है उतना वो उससे किराया को वसूल करता है। तो ये याद रखना चाहिए कि इस सूरत में जो कम किराया लिया जाता है तो ये भी गोया के असल जो कर्जा मकान मालिक ने किराएदार ने मकान मालिक को दिया है, तो मकान मालिक को देने की वजह से मकान मालिक उसके साथ एहसान का मामला कर रहा है कि उसका किराया कम कर दिया। तो शरीयत ये कहती है कि कर्ज की जो शक्ल होती है, ये जो डिपॉजिट दिया, एडवांस दिया, लीज पर जो दिया, ये गोया के एक तरीके का कर्ज हुआ है और कर्ज पर किसी भी तरीके से नफा के हासिल करने की फुक़हा ने इजाजत नहीं दी है। कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा के तहत। लिहाजा यहाँ किराया कम कर दिया, लिहाजा ये कर्ज पर किराया कम हो गया। इस सूरत में ये किराया का कम करना भी जायज़ नहीं होगा। इस सूरत में ना ही मकान मालिक के लिए उस किराए को कम करना जायज़ है और ना ही किराएदार का कम किराया देना कर्ज देने के बाद जो है जायज़ होगा। ये सूरत भी नाजायज़ और हराम होगी। ये तो 2 सूरत थी। और अगर किराएदार मकान मालिक को उसके मकान का मुकम्मल किराया दे, उसमें कोई कमी ना करे, लेकिन मकान मालिक डिपॉजिट की रकम लिए बगैर मकान किराए पर देने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी सूरत में किराएदार के लिए डिपॉजिट के नाम पर रकम देना तो जायज़ होगा। अलबत्ता वो डिपॉजिट में सिर्फ इतनी रकम दे जिसकी वजह से किराए में कोई कमी ना की जाती हो। मसलन किराया उसका 10,000 रुपया है, तो आप 50,000 रुपया उसको डिपॉजिट दे दीजिए और जो आपका मंथली महीना 10,000 रुपया किराया है वो आप उसको देते रहे, तो इसमें कोई हरज और गुनाह की बात नहीं होगी। और ना ही मुतलक डिपॉजिट की वजह से किराया कम किया जाएगा। लिहाजा इस सूरत में आपके लिए कोई जुर्म भी नहीं होगा और न किराया कम होगा और न डिपॉजिट न देने की वजह से आपको मकान नहीं मिल रहा है, ऐसी भी सूरत नहीं होगी। चुनांचे ये बहस जो है अन्नत्व फिल फतावा के अंदर दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने नकल किया है। लिखते हैं अनवाउर रिबा व अम्मर रिबा फहुवा अला सलासति औजुहिन अहदुहुमा फिल कुरूज वसानी फिल दुयून वसालिस फिर रहन अर्रिबा फिल कुरूज। इसकी तफसीली बहस जो है आप अन्नत्व फिल फतावा के अंदर देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 285 और 284 और 285 सफ़े पर दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर भी ये फतवा मौजूद है। ये तो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने जो फतवा दिया था वो बहस एक फतवे की आपके सामने मुकम्मल हुई। अब इसी को हम दूसरे फतवे के रूप से देखते हैं। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर 1439 हिजरी ही का एक फतवा है। लिखता है साइल कि मेरा सवाल यह है कि हम ऐसे मकान में रहते हैं जिसको 7 लाख रुपये में लीज पर लिया है, 3 साल के बाद और 1,000 किराया अदा कर रहे हैं। 3 साल के बाद वो 7 लाख रुपया हमें वापस मिल जाएंगे, तो क्या हम इस मकान में रह सकते हैं और क्या हमें इस रकम की ज़कात अदा करनी होगी? ये सूरत दूसरी है। पहली जो सूरत मैंने बयान की है वो जायज़ नाजायज़ की थी। वो क्या सूरत थी आप उसको फिर से देख लीजिए। अब इसमें दोनों सूरतें हैं कि रहने का क्या हुक्म है और उस जो डिपॉजिट दिया है, एडवांस दिया है, लीज दिया है, उसकी ज़कात का मसला शरई हुक्म में क्या है। तो इस मसले में ज़रा काफ़ी तफसीली बहस है, आप इसको देखें। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर फतवा नंबर 1283 इक्वल क्या नाम है 15
1570H 12-1439 हिजरी का ये फतवा वेबसाइट पर मौजूद है। आप जो मैंने आपको सवाल पढ़ा, ये सवाल आप टाइप करेंगे तो आपको इसका जवाब ये मिलेगा। चुनांचे लिखते दारुल देवबंद के मुफ्तियान किराम कि सूरत मसूला में आपने लीज पर मकान लेने का मामला किया है, वो सूद पर मुश्तमिल होने की वजह से नाजायज़ है। यही सूरत बम्बई में भी पाई जाती है कि डिपॉजिट दे दिया, एडवांस के नाम पर दे दिया 15 लाख 20 लाख और मुफ्त रिहाइश, या इसी तरीके से कम किराया 1000 रुपया या 500 या 200 या 500 400 या जितना जिसकी जो आपस में तय हो जाए उतना कम किराया देते हैं। तो ये सूरत भी सूद पर मुश्तमिल है, जैसा कि मैंने अभी पहले बयान किया है। लिहाजा ये भी नाजायज़ और हराम है, क्योंकि जमाशुदा रकम जो कि मकान मालिक पर आपका कर्ज है उससे आपको किराए की कमी का फ़ायदा हो रहा, और यही सूरत बम्बई में भी पाई जाती है। और यही लीज का नाम देकर के केरला बेंगलोर वगैरह के अंदर भी लोग पाए जाते हैं कि ज़्यादा दे दिया डिपॉजिट 10 लाख 15 लाख, और मकान का मालिक जो है किराया कम कर देता है, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया कम कर देता है। तो गोया कि ये कर्ज पर नफ़ा हासिल करना है, जिसको फुक़हा ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। चुनांचे ये सूरत भी नाजायज़ हो रही। लिहाजा इस मामले को जो लोग इसके अंदर मुलव्विस है उसको इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। साइल को जवाब दे रहे कि इस मामले को ख़त्म कर दे और जायज़ मामला कर ले, जिसकी सूरत ये हो सकती है, खुद कह रहे मुफ्तियान किराम, जिसकी सूरत ये हो सकती है कि आप हर महीने का मुअताद किराया मुतय्यन कर ले, यानी उस मकान का उस एरिए का जो आम तौर पर किराया होना चाहिए वो किराया आप मुतय्यन कर ले, जो आप हर महीने जितना होता है उसका किराया उस एरिए का 2000 5000 10,000 वो आप हर महीने अदा करते रहे, ये आपके लिए इजाज़त है। और अपनी जमाशुदा रकम को वापस ले ले, ये क्योंकि पहले ही से मामला नाजायज़ था, इसलिए इस पैसे को आपको ले लीजिए। आप ले लेने के बाद जो है इसकी सूरत ये होगी कि आपका ये कर्जा है, तो गोया कि आपने किसी को कर्ज दिया है तो इसकी ज़कात भी आप ही के ज़िम्मे है। लिहाजा अपनी जमाशुदा रकम को आप उनसे वापस ले लें, और जमाशुदा रकम वापस लेना मुश्किल हो तो उस रकम को पेशगी अदा किया हुआ किराया मान ले। यानी ये कह दीजिए कि अब मैं आज से कोई किराया नहीं दूंगा, ये जो मेरा 5 लाख रुपया डिपॉजिट है ये आपको मैं दे दे रहा हूँ, और जितना साल इसका मेरा किराया मुतय्यन होता है 5 साल 10 साल का, मैं उतने दिन का किराया समझिए कि आपको दे दिया। इस तरीके से आपके लिए एडवांस किराया भी दिया जा सकता है। फिर हर महीने आप उसको किराया जो होता था आप उसको नहीं दीजिए, और आप हिसाब व किताब करके उतने दिन आप रह लीजिए। लिहाजा जो रकम आपने जमा की है वो आपको किराया अदा नहीं करना पड़ेगा, आप उसका ख़त्म हो जाएगा, ना उस पर कोई ज़कात होगी ना किराया होगा, आगे कोई चीज़ आपको देनी नहीं होगी। लिहाजा अब जो रकम आपने अगर ऐसा नहीं किया तो जो रकम आपने कर्ज के नाम पर दी है वो आपकी मिल्क में है। जाहिर सी बात है, जो आपने किसी को कर्ज के नाम पर दिया है तो ये कर्ज ही होगा। लिहाजा हौलान हौल यानी साल के गुजर जाने की सूरत में ज़कात की शराइत के मुताबिक उस जमाशुदा रकम पर भी आप पर ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म नाफिज किया जाएगा। लेकिन जब आप मामला को ख़त्म करके जमाशुदा रकम को पेशगी किराए के तौर पर दे दिया तो आपके पास है नहीं, तो उसका फिर ज़कात का वजूब ही नहीं होगा, लिहाजा ज़कात वाजिब नहीं होगी। चुनांचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह किताब उस-सर्फ के अंदर लिखते हैं, जिसको है फतावा हिंद के अंदर नकल किया है, कहते हैं कि इन्ना अबा हनीफा कान यकरहु कुल्ल क़र्ज़िन जर्र मनफ़ा। ये एक इमाम करखी आगे लिखते हैं, हादा इदा कानतिल मनफ़ा मशरूततुन फिल अक़्द। ये फतावा हिंद की इबारत है 3री जिल्द सफ़ा 91 पर। और फिर आगे जो है बदाए सनाए की 4थी जिल्द सफ़ा 518 पर भी कुछ इसी तरीके से इबारत है,
अम्मा अल्लज़ी यरजू इला नफ्सिल क़र्द फ़हुव अल्ला यकूना जर्र मनफ़ा, ये इस तरीके की इबारत है। फिर बदाए सनाए में आगे है इल्ला अन्नल इअदाद लित्तिजारत फ़ी अस्मानिल मुतलक़ा मिन अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा साबितुन बिअस्लिल ख़िल्क़ा, ये भी जो है बदाए सनाए की दूसरी सफ़ा 92 पर ये इबारत मौजूद है। फतावा शाम के अंदर है तजिबु ज़कातुहा इंद क़ब्ज़ 40 दिरहमन मिन अद-दैन, ये दुर्र मुख्तार तीसरी जिल्द सफ़ा 237 पर है। ये फतवा नंबर है दारुल देवबंद का 16-33-23, ये फतवा नंबर है। तारीख़ हिजरा है सितंबर 17 तारीख़ 2018 का ये छपा हुआ फतवा है दारुल देवबंद का। ये तो दो सूरतें आपके सामने बयान की गई है फतवे की। अब एक तीसरा मसला जो बहुत ही गुंजलक है और इसमें हमारे उलमा का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है कि इस रकम को हम डिपॉजिट की रकम तस्लीम करते हैं तो फिर रेहन माना जाएगा, या एडवांस या लीज के नाम पर हम इसको देते हैं। तो पहली सूरत में ये होगा कि इस रकम को, जो डिपॉजिट की रकम है, इसको हम क्या तस्लीम करते हैं। आया हम इसको डिपॉजिट की रकम तस्लीम करें या रेहन की शक्ल रेहन की शक्ल को हम यहाँ पर माने, या लीज की या एडवांस की, क्या सूरत अपनाई जाएगी। तो इसमें हमारे उलमा का इख्तिलाफ है, बाज़ कुछ कहते हैं और बाज़ कुछ कहते हैं। बहरहाल इतना तो मुतय्यन है कि आखिर में हमारे उलमा ये फैसला करते हैं कि ये जो लीज है या लीज कह लीजिए बाल्फाज़ दीगर, या डिपॉजिट या एडवांस, इसको हमारे उलमा मौजूदा दौर में ये कहते हैं कि ये रहन है। अब जब रहन हमने तस्लीम कर लिया तो फ़ुक़हा के उसूल के मुताबिक रहन की ज़कात ना ही राहिन पर वाजिब होती है और ना ही मुर्तहिन पर वाजिब होती है। जब हम इसको डिपॉजिट की रकम को रहन तस्लीम कर लेते हैं, लीज की रकम को, एडवांस की रकम को रहन तस्लीम कर लेते हैं, तो दोनों में से ना ही मकान मालिक पर ज़कात का वजूब होगा और ना ही जो है किराएदार पर ज़कात का वजूब होगा। दोनों में से किसी पर ज़कात वाजिब नहीं होगा। अब वो रहना उस सूरत में जायज़ है या नाजायज़ है, वो एक अलग बहस है, वो आप तो आगे गुजर चुके, आप उसको पीछे वीडियो में देख सकते हैं। लिहाजा अब हम इसकी बहस करते हैं, फिर आगे आखिर में खुलासा पेश करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अब हमको यहाँ क्या करना चाहिए। लिहाजा हम आखिर में जो है इसका खुलासा पेश करेंगे कि ज़कात किस पर है और किस पर नहीं, और इस तरीक़े से मकान में रहना जायज़ है या नाजायज़, उसकी बहस आखिर में पेश करेंगे, आप वहाँ देखते रहिए। चुनांचे अब हम बहस कर रहे हैं एडवांस पर ज़कात का मसला, डिपॉजिट पर, लीज पर ज़कात का मसला। लिहाजा ये बड़ा तफसीली मसला है और उलमा ने इसके अंदर आपस में इख्तिलाफात को बयान किया है। चुनांचे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बतलाता हूँ, आखिर में इसका एक तज्ज़िया पेश करूँगा, फिर आप उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह आपके लिए नफ़ा होगा। ये मसला आता है कि एडवांस या डिपॉजिट या लीज पर ज़कात किसके ज़िम्मे है, मालिक मकान पर या किराएदार पर। तो इसी के ज़िम्न में ये मसला ज़ेर बहस आता है कि किराए के दुकानों या मकानों पर जो एडवांस दिया जाता है, जिसको हम लीज कहते हैं या डिपॉजिट कहते हैं या एडवांस कहते हैं, दिया जाता है और अक़्दे इजारा के ख़त्म या फ़स्ख़ हो जाने पर, ख़त्म करने पर, या उस मामले को जो इजारा किया जाता है उसके फ़स्ख़ करने पर किराएदार को ये रकम एडवांस, डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको कहते हैं, या लीज वापस कर दिया जाता है मकान मालिक को या दुकान के मालिक को। तो उस पर ज़कात है या नहीं, तो किस पर है। अब ये भी मसला आएगा कि उस पर ज़कात है या नहीं, और है तो किस पर है, किराएदार पर है या मकान मालिक पर है। तो सबसे पहले हमको इस डिपॉजिट की रकम, लीज की रकम या एडवांस की रकम की शरई हैसियत मुतय्यन करनी पड़ेगी, तभी मसले का हल निकल सकता है। अगर इसकी हैसियत मुतय्यन नहीं होगी तो फिर मामला
दुरुस्त नहीं होगा। चुनांचे ये जाहिर है कि एडवांस की रकम मालिक मकान की मिल्कियत में नहीं है। ये तो बिल्कुल तय है कि एडवांस की जो रकम हमने दी है, डिपॉजिट के रकम पर या लीज की रकम, ये तो मकान मालिक का तो है नहीं, क्योंकि उसका है ही नहीं। लिहाजा जब मकान मालिक का नहीं है, उसकी मिल्कियत में बिल्कुल नहीं है, अगरचे फिलहाल उसके ऊपर कब्जा शुमार किया जा रहा है, फुक़हा कहते हैं कि उसके ऊपर कब्जा है, लिहाजा मालिक मकान पर उस रकम की ज़कात आयद नहीं होगी, क्योंकि ज़कात का वजूब उस वक्त होगा जब मिल्कियत कामिल पाई जाएगी, और इस वक्त मकान मालिक की मिल्कियत इस पैसे के ऊपर कामिल नहीं है, आर्जी कब्जा है इसका। अब रहा यह कि किरायादार, लिहाजा मकान मालिक पर इस रकम की ज़कात का वजूब नहीं होगा, लिहाजा मकान मालिक तो बरी हो गया। अब रहा यह कि किराएदार जो कि उस रकम जो एडवांस का मालिक है उस पर उसकी ज़कात वाजिब होगी या नहीं। मकान मालिक तो बरी हो गया, उसको लीज पर दे दिया गया, या ये कि डिपॉजिट के नाम पर दे दिया गया, एडवांस के नाम पर दे दिया गया, तो अब तो वो मकान मालिक इससे बरी हो गया। अब किराएदार का मामला है, तो किराएदार के ज़िम्मे वाजिब है या नहीं। तो इस सिलसिले में पहले इस रकम की हमको मुतय्यन करनी पड़ेगी हैसियत की, क्या रकम की हैसियत बनती है। तो इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात है और कई एक जो है जिहत इसके अंदर मुतय्यन होती है। उसमें से चंद एक जिहत को मैं आपके सामने नकल करता हूं, वो ये कि एक एहतमाल ये है कि ये कर्ज हो, मगर तामुल और उसका रद्द कर देते हैं। हम बम्बई के अंदर रहते हैं, बम्बई के हालात को जानते हैं। बम्बई में लोग इसको कर्ज तस्लीम बिल्कुल नहीं करते, सिरे से इसको इनकार ही कर देते कि ये जो हमने लिया है डिपॉजिट के नाम पर ये कर्ज नहीं है। अब जब कर्ज नहीं रहा तो कर्ज में मियाद मुकर्रर नहीं होती है। फुक़हा ने लिखा कुल्लु दैन हाला इदा अजलहु साहिबु सारा मुअज्जन इल्लल कर्ज फ़इन्न ताजीलहु ला यसिहु। लिहाजा जब यहाँ कर्ज की शक्ल मुतय्यन नहीं हो रही है और कर्ज सिले से न मकान मालिक बम्बई में तस्लीम कर रहा है और न ही किराएदार तस्लीम कर रहा है इसको कर्ज, जब दोनों के दरमियान कर्ज है ही नहीं तो मकान का मालिक तो पहले ही आज़ाद हो चुका था। अब रहा मसला किराएदार के लिए, तो ये रकम कर्ज की तस्लीम नहीं की जा सकती है। एक सूरत तो ख़त्म हो गई कि अब ये कर्ज नहीं है। फिर क्या है भाई, ये डिपॉजिट की रकम, लीज की रकम, एडवांस की रकम कर्ज नहीं है। अब जब कर्ज नहीं है तो कर्ज नहीं तो मामला ख़त्म हो गया। अब दोनों में से किसी पर ज़कात नहीं, मकान मालिक पहले आज़ाद हो चुका, अब रहा किराएदार, तो उसकी एक सूरत कर्ज नहीं। जब कर्ज नहीं तो मसला अब फिर हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। दूसरा एहतमाल, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वदियत को देखा जाए। अमानत या वदियत होती, ये पैसा 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी है, ये अमानत होती, वदियत के तौर पर रखी होती। मगर ये एहतमाल भी इसलिए नहीं कि अमानत अगर बगैर तअद्दी के तल्फ हो जाए तो उसका ज़िमान नहीं आता है, और बम्बई में लोग इसको अमानत भी नहीं तस्लीम कर रहे हैं। जिन लोगों से आप किराए पर मकान लीजिए वो इसको अमानत तस्लीम ही नहीं करते हैं, और बम्बई में इस पैसे को लोग अपने ज़ाती इस्तेमाल में तसर्रुफ़ कर रहे हैं। जब ज़ाती तसर्रुफ़ कर रहे हैं तो अमानत का हुक्म ही बदल गया, अमानत में तअद्दी तो है ही नहीं। साहिब हिदाया लिखते हैं अलवदिया तो अमानतुन फी यदिल मुदा इदा हलकत लम युज़म मिनहा। इसको इब्न कुदामा हम्बली फरमाते हैं व जुमलतुहु अन्नल वदिया अमानतुन फ़इदा तलफ़त बिग़ैर तफ़रीत। ये बड़ी तफसील के साथ जो है नकल किया है इसको इब्न कुदामा हम्बली ने। आगे अल्लामा अबू इसहाक शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल वदिया तो अमानतुन फी यदिल मुदा फ़इदा तलफ़ बिग़ैर तफ़रीतिन औ तज़म्मन। ये इस तरीके की इबारत बड़ी तफसील से नकल की है। फिर जब ये दोनों सूरतें नहीं है तो अब इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि एडवांस के सिलसिले में उर्फ और आदात से साबित है कि ये रकम बहर सूरत वाजिबुल अदा होती है। बम्बई में आप किसी से भी मकान ले लीजिए
आपको ये पैसा बहर सूरत अदा ही करना पड़ेगा, इसके बगैर आपके लिए कोई चारा कार नहीं है। लिहाजा तलफ ही क्यों ना हो जाए, वह खातादी की सूरत में हो या ना हो, लिहाजा उसको अमानत और वदियत में तो नहीं कह सकते हैं। दोनों एहतमाल ख़त्म हो गया, अब अमानत भी नहीं है, कर्ज भी नहीं है। हम तीसरी सूरत और देखते हैं कि तीसरी सूरत क्या है। इस बारे में ये रकम आरियत होगी, ये सूरत आरियत के तौर पर, ज़रूरत के तौर पर हमने कहा कि थोड़ा वक्त के लिए हमको ज़रूरत है, आप दे दीजिए, तो ये आरियत हुई। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी वजह यह है कि आरियत में भी मालिक को हर वक्त रुजू का हक होता है, और एडवांस में ये बात नहीं है। जब तक आपका एग्रीमेंट पूरा नहीं होता है, लीज में या एडवांस में या डिपॉजिट में, आपका जब तक वक्त मुतय्यन नहीं होगा 11 महीने का, या आपस में जो भी कुछ तय हुआ, वो आपको रकम मिलने वाली नहीं है। जब ये मिलने वाली नहीं है तो फिर ये आरियत भी कहाँ हुआ, एडवांस में ये नहीं होता। दूसरी आरियत, दूसरे ये कि आरियत में भी मिसल वदियत यानी अमानत ही के होता है, जिसके बगैर तादी हलाक व तलफ हो जाने से ज़िमान लाजिम नहीं आता है। और यहाँ तो ऐसी सूरत नहीं, आपको बहस सूरत अदा ही करना पड़ेगा। मकान मालिक किराएदार जब खाली करके जाएगा आपको देना ही पड़ेगा, चाहे मकान बेच करके दीजिए। तो ये सूरत इसकी भी नहीं पाई जाती है कि ये रकम आरियत की हो। साहिब हिदाया लिखते अपनी किताब बिदायतुल मुब्तदी में कि वलिल मुअय्यर अन यरजा फिल आरियती मता शा वल आरिया अमानतुन अन्ना हलका मिन गैर ताद्दी लम युज़मन। और ये जाहिर सी बात है कि एडवांस की जो रकम है हलाक हो जाए या तलफ हो जाने की सूरत में भी वाजिबुल अदा शुमार की जाती है। तीसरे उलमा ने लिखा है कि आरियत और दराहिम व दनानीर या मकीली या मौजूनी या मादूदी शय हो, वो कर्ज के हुक्म में होती है। चुनांचे फुक़हा ने लिखा व आरियतु दराहिम व दनानीर वल मकील वल फुलूस, ये लिखा हुआ है फतावा शाम वगैरह के अंदर। अब ये तीन सूरत से तो हम बरी हो गए कि तीनों सूरत में से कुछ भी नहीं है, न कर्ज है, न अमानत है, न आरियत है। तीनों सूरत में मकान मालिक जिस दिन किराएदार खाली करके जाएगा, आपको बहर सूरत वो रकम लौटानी ही पड़ेगी, चाहे आपके पास हो या ना हो। मकान बेच करके दीजिए, लेकिन आपको किराएदार को देना ही पड़ेगा। तो ये तीनों सूरतों में कोई सूरत नहीं है। लिहाजा अब एडवांस की रकम को आरियत कहने में भी वो कर्ज ही कहलाएगी। और ऊपर अर्ज कर चुका हूं मैं, ये इस पहले मैं बतला चुका हूं कि एडवांस की रकम के बारे में ये एहतमाल और आदत और लोगों में उर्फ मशहूर है कि ये सही नहीं। लिहाजा एडवांस की रकम आरियत के जेल में भी दाखिल नहीं की जाती है। फिर अब क्या होगा? अब हम इस सिलसिले में चौथी सूरत की तरफ रुख करते हैं। इस सिलसिले में एक एहतिमाल ये बाकी रहता है कि ये एडवांस, लीज, डिपॉजिट ये रहन हो, और ये एहतमाल काफ़ी हद तक इस रकम एडवांस पर मुंतबिक हो जाती है। जैसा कि हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और दीगर मुफ्तियान किराम लिखती है। लिहाजा ये लीज, डिपॉजिट, एडवांस की रकम ये रहन शुमार हो। अब इसमें शय मरहून जिस तरह मजमून होती है, इसी तरह एडवांस की रकम भी मजमून होती है। एडवांस, लीज या इसी तरीके से जो डिपॉजिट की रकम है ये मजमून होती है। दूसरे एक इसलिए कि शय मरहून की वापसी जिस तरह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि मरहून यानी दैन को वापस ना किया जाए, इस तरह एडवांस की रकम भी उस वक्त तक वापस नहीं होती जब तक कि किराएदार घर या मकान मालिक या दुकान मालिक हवाले ना कर दे मकान को। तीसरे इसलिए कि रहन में जिस तरह शय मरहून को मुर्तहिन के पास रहने का मकसद मुर्तहिन के दिल में वसूख पैदा करना, इसका इत्माद पैदा करना, इसी तरह एडवांस देने का भी यही मकसद होता है। और जब हमने इस चौथी सूरत को मुतय्यन किया और तफसील देखी तो ये वाज़ेह हो गया कि एडवांस की रकम शय मरहून के मुशाबे है, रहन के मुशाबे है। तो इसके बारे में ज़कात का हुक्म मालूम करना अब हमारे लिए बिल्कुल साफ और आसान हो गया।
और जब हम इसको शय मरहून रहन तस्लीम करते हैं तो उलमा का इख्तलाफ इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया कि अब शय मरहून पर ज़कात का मसला ये है कि उलमा ने लिखा कि ज़कात के वजूब की एक शर्त ये है, जैसा कि अभी ऊपर मालूम हो चुका, कि मिल्के ताम, और मिल्के ताम नाम है मालिक के ममलूक और मकबूज होने का। और शय मरहून चूँकि मालिक के कब्ज़े में नहीं है, मकान मालिक का पैसा है नहीं, लिहाजा उस पर उसकी कामिल मिल्कियत तो है लेकिन कब्ज़ा तो है लेकिन मिल्कियत नहीं है। और मकान मालिक का जो पैसा है, किराएदार का जो पैसा है, इसकी मिल्कियत तो है लेकिन कब्ज़ा नहीं है। अब जब दोनों सूरतें दोनों के अंदर नहीं पाई गई, इसकी मिल्कियत है लेकिन कब्ज़ा नहीं, मकान मालिक का कब्ज़ा है मिल्कियत नहीं, किराएदार का मिल्कियत है कब्ज़ा नहीं, लिहाजा इन दोनों सूरत के ना होने की वजह से शय मरहून चूँकि मालिक के कब्ज़े में नहीं, इसलिए उस पर मिल्के ताम नहीं, लिहाजा उस पर ज़कात का वजूब नहीं होगा। ये तफसील है। लिहाजा खुलासा अब ये निकला कि एडवांस की रकम पर या ज़कात की रकम, ये क्या नाम है, डिपॉजिट की रकम पर या लीज़ की रकम पर ज़कात ना ही मालिक मकान पर है और ना ही किराएदार पर है। अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह अल-बहर राइक के अंदर लिखते हैं, वमिन मवानिल वुजूब अर्रहन इदा कान फी यदिल मुर्तहिन लिआदमी मिल्किल यद। दुर्र मुख्तार में और रद्दुल मुख्तार में है, वला फी मरहून ऐ ला अलल मुर्तहिन लिआदमी मिल्किर रक़बा। बिल्कुल इसी तरह एडवांस की रकम पर भी ज़कात नहीं, लीज़ की रकम पर ज़कात नहीं और डिपॉजिट की रकम पर ज़कात नहीं। अब इस तरीके से मामला करना ना करना, ये क्या बहस थी, आगे गुजर चुकी, आप वहाँ देख सकते हैं। लिहाजा न मालिक पर है क्योंकि मालिक का इस डिपॉजिट की रकम पर, लीज़ की रकम पर, एडवांस की रकम पर कब्ज़ा नहीं, और ना ही राहिन पर है इसलिए कि उसका मिल्कियत कब्ज़ा नहीं है मुकम्मल तौर पर। अब इसी को बहाज़ इलाके के अंदर जो है एक और नाम दिया जाता है, वो कहते हैं मार्क गेट, या इंग्लिश में इसको लिखे तो मॉर्गेज पर मकान को लेना वगैरह। तो इस पर ज़कात का क्या हुक्म है? ये भी वो साहब ने जो सवाल किया था, उन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया, तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे इसका इल्म नहीं कि मॉर्गेज होता क्या है। उर्दू में इसको मार्गेज कहते हैं और इंग्लिश में इसको लिखते हैं तो मॉर्गेज लिखते हैं। तो ये असल क्या होता है इसका इल्म तो हकीकत में मुझको नहीं है। मैंने कहा कि आप अपने इलाके को उलमा से इसकी तफसील मालूम कर लीजिए, वो आपको तफसील बतला देंगे। चुनांचे आजकल एक मामला शहरों में, फिर मैंने देखा इसको तो इसकी तफसील इस तरीके से लिखी हुई है कि शहरों में जो राइज मामला होता है घर पर किराया वगैरह लेने का, ये भी ऐसे ही है जैसे कि डिपॉजिट, एडवांस या लीज़ वगैरह पर लिया जाता है मकान को, तो उसकी भी सूरत मॉर्गेज वगैरह पर जो है इसी की हम मिसल होती है। लिहाजा इस सूरत में अगर मामला किया जाए जिसकी सूरत यह है कि मकान मालिक एक खतीर रकम मसलन लाख 2 लाख रुपया अपना घर रुपया लेकर अपना घर बिला किराए पर देने वाले को एक मुकर्ररा मुद्दत तक दे देता है, जैसा कि ये सूरत अभी मैंने ऊपर बतलाई, उसी का नाम दूसरा ये मॉर्गेज के नाम से है। तकरीबन इसमें वही कुछ होता है जो डिपॉजिट वगैरह में होता है कि डिपॉजिट ज़्यादा दे दिया और किराया कम कर दिया, या डिपॉजिट ज़्यादा दे दिया किराया बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बेआईन ही यही है मॉर्गेज, इसका नाम सिर्फ दूसरा है। अब मैंने कहा ना कि हर इलाके के अंदर इसकी नौइयत अलग अलग होती है, लिहाजा नौइयत के अलग अल्फाज के बदल जाने से मसले का हुक्म नहीं बदलता है। चुनांचे इसमें लिखा है कि एक बहस से इसके तहत नकल की गई है, उसमें लिखा है कि 2 लाख 3 लाख रुपया या जो भी कुछ रकम होती है वो दे देता है, और जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है वो रकम देने वाला मकान को खाली करा करके चले जाता और मालिक मकान उसकी वो रकम को वापस कर देता है। तो ये मामला शरीय एतबार से नाजायज़ है क्योंकि इसमें शय मरहून में मुर्तहिन नफ़ा उठाता है। इसको मैं पूरी शुरू से पढ़ करके सुना देता हूँ ताकि जो है आपको बेनी पढ़ी करके सुना देता हूँ, इस पर मैं क्या तबसरा करूँ।
गेज मॉर्गेज पर मामला किया जा रहा है। आजकल एक मामला शहरों में ये राइज होता जा रहा है कि घर किराए पर लेने देने की जगह मार्ट गेज मॉर्गेज जिसको कहते हैं पर मामला किया जा रहा है, जिसकी सूरत यह है कि मालिक मकान एक खतीर रकम मसलन लाख 2 लाख रुपया लेकर अपना घर बिला किराया रकम देने वालों को एक मुकर्ररा मुद्दत तक रहने के लिए दे देता है, और जब वो मुद्दत पूरी हो जाती है तो रकम देने वाला मकान खाली करके और मालिक मकान वो रकम वापस कर देता है। ये लिखा हुआ है। तो आगे इसका जवाब ये है कि ये मामला शरई एतबार से नाजायज़ है, क्योंकि इसमें शय मरहून से मुर्तहिन नफ़ा उठा रहा है और ये हराम है। यहाँ इस वक्त इसकी बहस मकसूद नहीं कि हमने उस पर दूसरे मकाम पर कलाम किया या बहस की है। ये कि मॉर्गेज पर दी हुई रकम ज़कात किसके ज़िम्मे है, मालिक मकान पर या रकम देने वाले पर। यह सूरत बज़ाहिर उस सूरत के मुशाबे है जिसको फ़ुक़हा ने बैल वफ़ा कहते हैं, जिसमें यह होता है कि एक शख्स अपनी ज़मीन किसी को इस शर्त पर देता है कि वो किसी और को ये फ़रोख्त नहीं करेगा और बाद में उससे वो खुद पहली कीमत पर ख़रीद लेगा। इसको भी अक्सर फ़ुक़हा ने नाजायज़ कहा है और इस दी हुई रकम पर ज़कात के सिलसिले में इख्तिलाफ है। चुनांचे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में 3 अक़वाल नकल करते हैं। एक ये कि इसकी ज़कात मालिक मकान पर होगी क्योंकि ये रकम उसकी मिल्कियत में दाखिल हो गई। दूसरा ये कि उसकी ज़कात मुश्तरी मकान मालिक ख़रीदने वाले यानी रकम देने वाले पर होगी क्योंकि वो खुद भी उस रकम का अपने को मालिक समझता है। तीसरा ये कि इसकी ज़कात दोनों पर होगी। फिर अल्लामा शामी ने लिखा मुनासिब यह है कि उसकी ज़कात मुश्तरी यानी रकम देकर मकान हासिल करने वाले पर होना चाहिए, क्योंकि ये सूरत बमंजिल रहन के है, लिहाजा ये रकम बाए पर दैन होगी। उनकी इबारत यानी अल्लामा शामी की इबारत यह है यंबगी लुज़ूमहा अलल मुश्तरी फ़क़त अलल क़ौल अल्लज़ी अलैहिल अमल। ये पूरी तफसील नकल की गई है। अब इस सिलसिले में कि जो ज़ेर बहस मसला है मॉर्गेज वाली सूरत में भी ज़कात रकम देने वाले पर होना चाहिए, ना कि मालिक मकान पर, क्योंकि मालिक मकान तो इस रकम का मालिक ही नहीं और वो रकम उस पर दैन है जिसका वापस करना उस पर लाजिम है। उसके बरखिलाफ रकम देने वाला उसका मालिक है और उसको रकम बाद में मिलेगी, क्योंकि ये रकम कर्ज है और कर्ज पर दी हुई रकम उसकी वापसी यकीनी हो या उसकी वापसी का गालिब गुमान हो, उसकी ज़कात कर्ज देने वाले पर होती है। ये तो जो मसला था मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया। बहरहाल मॉर्गेज या मार्गेट कह लीजिए, ये जो भी कुछ है इसको कहा जाता है जिस इलाके में, तो इसमें अब 4 सूरतें हो गई। पहला बम्बई की ज़ुबान में इसको कह लीजिए कि डिपॉजिट या एडवांस रकम, केरला की ज़ुबान में कह लीजिए लीज या मॉर्गेज वगैरह या मार्ट गेज, जो भी कुछ इसका नाम हो, जिस इलाके में जिस जो नाम चलता है उसके ऊपर इस लफ्ज़ को मुंतबिक कर लीजिए। हो सकता है मेरे कहने में ऊपर नीचे हो। तो इसको अगर हम जो पहली सूरत हमने बतलाई थी तफसील के साथ, उसके अंदर अगर रहन की सूरत तस्लीम करते हैं तो फिर इसमें भी ज़कात का वजूब किसी के ज़िम्मे नहीं है, ना ही मकान मालिक पर ना ही किराएदार पर। और रहन की सूरत को तस्लीम करने ही में आफियत है इस सिलसिले में, इसलिए कि अगर हम रहन की सूरत को नहीं तस्लीम करते हैं तो फिर मामलात जो आज बड़े बड़े शहरों में हो रहा है कि इसको कोई कर्ज तस्लीम नहीं करता है, डिपॉजिट को कोई कर्ज तस्लीम नहीं करता, ना ही अमानत कोई तस्लीम करता है, और इस तरीके से ना ही इसको कोई भी शख्स ये कहता है कि वदियत है और ना ही आरियत है और ना ही मॉर्गेज है। तो जब ये तमाम सूरतें नहीं पाई जा रही है तो फिर कौन सी सूरत पाई जाएगी? कोई तो सूरत कहीं तो जाकर के इसका मामला रुकेगा। और जब किसी सूरत में कोई मामला नहीं हुआ तो फ़ुक़हा की तफसील को देखने के बाद, जैसा कि अल्लामा इब्न नुजैम वगैरह की इबारत को देखने से ये बात साफ हो गई कि ये जो पैसा है ये पैसा एडवांस की जो रकम है, लीज की जो रकम है, मॉर्गेज की जो रकम है या क्या नाम है डिपॉजिट की रकम है, ये रहन शुमार की जाएगी। अब जब हमने जब इसको रहन तस्लीम कर लिया तो रहन के बारे में फ़ुक़हा लिखते हैं कि दोनों में से किसी पर ज़कात
ज़कात नहीं है। लिहाजा अब ये मामला करना कैसा है, नहीं करना, वो एक अलग बहस थी। यहाँ ये मैं बतलाऊँ कि मुतलक, तो अब मैं इसका सबका खुलासा पेश कर रहा हूँ। डिपॉजिट ज़्यादा दे करके, डिपॉजिट, लीज, एडवांस या मॉर्गेज, ये सब एक ही नाम है। ये ज़्यादा दे करके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या जितना किसी भी को भी ज़्यादा दे करके मुफ्त रिहाइश इख्तियार करना, ये नाजायज़ और हराम है। कुल्लु कर्दिन जर्र मनफातन फहुआ रिबा के तहत। ये एक सूरत हुई। दूसरी सूरत, डिपॉजिट ज़्यादा दिया जाए, मॉर्गेज या इसी तरीके से एडवांस या लीज ज़्यादा दिया जाए और फिर किराया कम कर दिया जाए। मसलन उस मकान का असल किराया 10,000 रुपया और आपने 15 लाख रुपया डिपॉजिट दे दिया, लीज दे दिया, एडवांस दे दिया, मॉर्गेज दे दिया और फिर आपका किराया 10,000 के बजाय 4,000, 2,000, 3,000 हो गया। तो ये भी गोया के कर्ज पर नफ़ा हासिल करना है। ये सूरत भी कुल्लु कर्दिन जर्र मनफातन फहुवा रिबा की फुक़हा की इबारत के रूह से ये भी आपका अमल नाजायज़ है। लिहाजा ज़्यादा डिपॉजिट दे करके किराया कम देना, मुतारफ किराए से कम देना, ये भी नाजायज़ और हराम है। इसकी भी आपको इजाज़त नहीं। ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत के लोग करते क्या है कि डिपॉजिट ज़्यादा दे दिया, अब किराया बिल्कुल नहीं रहता और क्या कहते हैं कि हम मेंटेनेंस भरते हैं, बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस हम देते हैं और मालिक मकान जो जिसका घर है उसको हम कोई चीज़ नहीं देते हैं। तो ये भी कुल्लु कर्दिन जर्र मनफातन फहुवा रिबा के तहत जो है ये सूरत भी नाजायज़ है और ये सूरत को भी फुक़हा ने हराम और नाजायज़ लिखा है, इसलिए कि ये भी कर्ज पर नफ़ा हासिल करना है। आप जो मेंटेनेंस दे रहे हैं ये तो खुद आप नल इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट बिल इस्तेमाल कर रहे हैं, कचरे के लिए जो लोग कचरा लेने के लिए आते हैं उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो आपको मेंटेनेंस आपको भरना ही था, चाहे कहीं पर भी रहिए। तो इस सूरत में मेंटेनेंस से भी आपका काम चलने वाला नहीं, ये सूरत भी नाजायज़ है। चौथी सूरत ये कि लीज के नाम पर या एडवांस के नाम पर या इसी तरीके से मॉर्गेज के नाम पर ज़्यादा रकम दी जाए, तो उसका भी वही हुक्म है जो मैंने अभी शुरू में बतलाया। पहली और दूसरी सूरत में इसकी भी इजाज़त नहीं है। अब इसमें ज़कात का मसला कि इस एडवांस रकम पर ज़कात किसके ज़िम्मे, डिपॉजिट, लीज, एडवांस रकम, मॉर्गेज पर ज़कात किसके ज़िम्मे, तो हमने इसकी तफसील पीछे नकल कर दी, पीछे आप देख लीजिए वीडियो को। और इसका हुक्म यह है कि हमने इसको रहन तस्लीम कर लिया। लिहाजा रहन तस्लीम करने की सूरत में मालिक मकान का कामिल कब्ज़ा होने की वजह से, कामिल कब्ज़ा ना होने की वजह से उसके ज़िम्मे से ज़कात साक़ित हो गई। लिहाजा मकान मालिक पर उस डिपॉजिट की रकम, लीज की रकम पर ज़कात नहीं है, इसलिए उसका कब्जा तो है लेकिन मिल्कियत नहीं है। और किराएदार पर उसकी ज़कात इसलिए नहीं कि उसकी मिल्कियत तो है लेकिन कब्ज़ा नहीं, लिहाजा दोनों में से किसी पर उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। अब इसको हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब लिखते हैं, डिपॉजिट की रकम बहुक्म रहन है और रहन की ज़कात ना राहिन पर वाजिब है ना मुर्तहिन पर, वो वापस कर दी जाएगी। तब भी रहन की गुज़िश्ता अय्याम की ज़कात मालिक के ज़िम्मे ना होगी। इस्लामिक फ़िक़ा एकेडमी के अहम फैसलों में है कि किराएदार की तरफ से मालिक के दुकान व मकान वगैरह को पेशगी दी गई ज़मानत की रकम, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ज़कात किराएदार के ज़िम्मे नहीं है। ये मसला हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब का जो पुराना छपा हुआ नुस्खा महमूदुल फतावा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 26 किताबुल ज़कात के अंदर ये मसला तफसील से मौजूद है। और जो नया छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर महमूदुल फतावा की तीसरी जिल्द फ़र्ज और ज़कात के मसाइल, डिपॉजिट पर ज़कात नहीं, उसकी जो है तीसरी जिल्द सफ़ा 492 पर इसको नकल किया है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी इसकी तफसील जो है नकल करते हैं। मालिक मकान के पास वो रकम किराएदार की तरफ से रहन के दर्जे में है, जब वो मकान खाली करे उस रकम की वापसी का मुतालबा कर सकता है। और माल रहन में ज़कात किसी पर वाजिब नहीं होती, न रहन रखने वाले पर, न ही उस शख्स पर
पर जिसके पास रहन रखा जाए। ये किताबुल फतावा तीसरी जिल्द सफ़ा 278 और 279 पर 78 और 279 पर इसको नकल किया है। और तफसील के साथ जो है मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी ने भी इसको नकल किया है, चूँकि उसमें बड़ी तफसील है जिसका लुब्बे लुबाब और खुलासा यही है कि ज़कात किसी पर नहीं। तफसील आप किताबुल मसाइल में देख ले, दूसरी जिल्द 221 और 222 सफ़े पर हजरत ने बड़ी तफसील नकल की है। चुनांचे लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े शहरों में दुकान मकान की किराए में मालिक मकान या डिपॉजिट के नाम से बड़ी रकम लेता है, जिन्हें दुकान या मकान के खाली कराने के वक्त वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ ये मसला है कि इस डिपॉजिट की रकम की ज़कात कौन अदा करे। किराएदार तो बज़ाहिर इसकी हैसियत रहन की मालूम होती है, इस बिना पर उसकी ज़कात शय मरहून के ज़ाब्ते के एतबार से ना तो मालिक पर वाजिब होनी चाहिए और ना ही किराएदार पर। इन्होंने भी जो है कि महमूदुल फतावा की दूसरी जिल्द सफ़ा 226 पर नकल किया। और नए मसाला और उलमाए हिंद के फैसले उसके सफ़ा 54 किताबुल फतावा तीसरी जिल्द सफ़ा 278 और तफसील जो है आगे फिर नकल की है, बड़ी तफसील के साथ नकल किया हजरत ने। नोट के तहत वो लिखते हैं कि डिपॉजिट की रकम को रहन मानने की सूरत में असल हुक्म शरी ये होगा कि ये डिपॉजिट की रकम मालिक मकान अपने तसर्रुफ में बिल्कुल ना लाए, लेकिन बिल्कुल ना लाए, बतौर अमानत महफूज रखे, लेकिन अमल इसके बरखिलाफ है, जैसा कि बम्बई में होता है और दीगर बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि कोई भी मालिक मकान या किराएदार उस रकम को अपने पास महफूज नहीं रखता, उसको अपने ज़ाती ज़रूरियात में इस्तेमाल कर लेता है, बल्कि बिला तकल्लुफ़ अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाता है। इल्ला माशाअल्लाह कहीं कोई हो तो उसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मुनासिब ये मालूम होता है कि शय मरहून में तसर्रुफ कर लेने की बिना पर उसे रहन के बजाय दैन मजमून के दर्जे में रखा जाए, यानी ये रकम गोया के मालिक पर किराएदार की तरफ से दैन है, लिहाजा उसकी ज़कात मालिक की दुकान या मकान पर वाजिब नहीं होगी, बल्कि किराएदार पर वाजिब होगी जो उस रकम का असल मालिक है। चुनांचे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बैउल वफ़ा की समन के तहत मुतालिक एक बहस करते हुए जो राय जाहिर फरमाई है उससे भी इसी की तायद होती है। मौसूफ फरमाते, जैसा कि मैं बहस पीछे भी पढ़ चुका हूँ, यंबगी लुज़ूमहल मुश्तरी फ़क़त अलल क़ौल अल्लज़ी अलैहिल अमल, ये शामी बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 166 पर नकल किया है। ताहम आगे लिखते हैं कि इस बारे में ये तफसील मुनासिब है कि अगर किरायादारी मुआहदे में मकान या दुकान खाली करने का कोई करीबी वक्त मुकर्रर है तो ये डिपॉजिट की रकम दैन कवी के दर्जे में होगी, और जब मुकर्ररा वक्त पर किरायादार या मकान खाली करके अपनी रकम वापस वसूल करेगा तो साबका सालों की ज़कात भी अदा करनी वाजिब होगी। और अगर किराए के मुआहदे में मकान या दुकान खाली कराने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है तो ये दैन मुतवस्सित या दैन ज़ईफ़ के दर्जे में है, यानी अगर किराएदार वसूल करने के बाद साबका सालों की ज़कात अदा करने का मामूर ना होगा, बल्कि जब रकम उसके कब्ज़े में आ जाएगी उसी वक्त से ज़कात का हिसाब शुरू होगा। ये तफसील जो है मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी ने नकल किया है किताबुल मसाइल दूसरी जिल्द 221 और 220 सफ़े पर। मुफ्ती शब्बीर साहब फतावा कासमिया में एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, मज़कूरा रकम की ज़कात ना किराएदार पर अदा करनी वाजिब है और ना ही काबिज़ मालिक मकान व दुकान पर, और किराएदार पर इसलिए वाजिब नहीं कि अदायगी ज़कात वाजिब होने के लिए कब्ज़ा शर्त है, वो यहाँ मफ़कूद है, और काबिज़ मालिक जायदाद पर इसलिए अदा करनी वाजिब नहीं कि मिल्कियत शर्त है और यहाँ मिल्कियत ताम नहीं है, गोया कि ये माल रहन के हुक्म में होगा। मुफ्ती शब्बीर साहब ने भी इस डिपॉजिट की रकम को रहन तस्लीम किया है। फतावा कासमिया उसकी 10वीं जिल्द 475 और 476 सफ़े पर तफसील मौजूद है। वमिनहल मिल्क ताम व हुवा मजतमा फीहिल मिल्क वल यद व अम्मा इदा वजदल मिल्क दूनल यद कसुदाक़ी क़ब्ल क़ब्ज़ अव वजदल यद। इस तरीके की इबारत फतावा आलमगीरी किताबुज़ ज़कात अल बाबुल अव्वल फ़ी तफ़सीरिहा व सिफ़तिहा के तहत पहली जिल्द 172 सफ़ा, पुराना छपा हुआ नुस्खा, जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द 233 सफ़ा, अल जौहरतुन नय्यरा किताबुज़ ज़कात जो कराची का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 139, दारुल किताब देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 37, अल बहरुर राइक़ किताबुज़ ज़कात कोयटा का छपा हुआ बलूचिस्तान दूसरी जिल्द सफ़ा 203 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ उसका नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द 355 सफ़ा, फतावा शामी किताबुज़ ज़कात ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 180, कराची का छपा हुआ नुस्खा
नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द 263 सफ़ा, हाशिया चलपी जो तबीनुल हक़ाइक़ के हाशिए पर उसकी किताब ज़कात मकतबा इमदादिया मुल्तान का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द 255 सफ़ा, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा जदीद छपा हुआ उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 27 पर। आलमगिरिया में वलो काला खुद हादिहिल अलवज़हु हत्ता आती का बिहक़्क़ि व अशहद ली बिलक़ब्ज़ि फ़अख़ज़ फ़हुव रहनुन। ये इबारत फतावा आलमगिरिया की है, किताबुर रहन अल-फ़स्लुस सानी फ़ीमा यक़उ बिहिर रहन व माला यक़उ, ज़करिया बुक डिपो देवबंद की 5वीं जिल्द, देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 434 और जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 490। काजी खान जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है उसकी ज़करिया बुक डिपो देवबंद का तीसरी जिल्द 594 सफ़ा, किताबुर रहन फ़स्लुन फ़ी अल्फ़ाज़िर रहन जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द 442 सफ़ा, फतावा कासमिया उसकी 10वीं जिल्द सफ़ा 476 और 475 और 476 सफ़े पर है। लिहाजा इस तफसील के अंदर सब वजाहत हो गई। लिहाजा ज़कात एडवांस की रकम पर या लीज़ की रकम पर या इसी तरीके से डिपॉजिट की रकम पर, गैड मैरिज के इस पर किसी भी सूरत में इस पर ज़कात का वजूब नहीं है, ये रहन है। लिहाजा डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट या क्या नाम है लीज़ की रकम पर ज़कात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये तफसील मैंने जो मुकम्मल दलाइल के साथ बयान किया है आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ दलाइल मिल जाएंगे।